Good morning, students. I am Rajni Gehlot, PGT English from Dhaurav Devras Saraswati Vidya Mandir. I am going to continue my chapter, The Enemy, which has been taken from the book Vistas. Okay, so I am going to tell you the summary in detail, okay, of this chapter. Firstly, I will tell you where was Dr. Sadao's house situated. It was situated on Japanese coast. जापान का जो समुद्री किनारा था उस एक नैरो बीच था जिस पर कि उनका घर जो था वॉज अ लो स्क्वायर स्टोन, एक स्क्वायर स्टोन के ऊपर बना हुआ था स्टोन बिल्ट हाउस. इट वॉज सेट अप रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच आउटलाइन विद बेंट पाइन्स एंड दैट बीच वॉज कवर्ड विद बेंट पाइन्स. झुके हुए पाइन्स की ट्रीज से वो पूरा कवर अप था. जो बीच था, समुद्री किनारा जो था, एक बहुत ही नैरो बीच था ये, एंड इट वॉज कवर्ड विद बेंट पाइन्स ट्रीज एंड ऑल्सो situated at the rock which was made of stone. His house was made with stones. Sadao's father had a deep concern for his education, and his father was very concerned about his education. Mostly parents, all the parents concerned about the study of their children. So he was also concerned for his son's education. So Sadao had been sent to America at 22 to learn all that could be learned of surgery and medicine there. So he was sent to America to complete his higher education, and he want to make him a surgeon, a famous surgeon or a scientist. So he was sent at the age of 22 years. So he returned at 30. After 8 years, he has become a famous surgeon and a scientist. He became not only a surgeon but also a scientist. So before the death of his father, he has become a famous surgeon and a scientist. It was the time of the World War. Japan was at war with America. Dr. Sadao had not been sent abroad with the troops. And when this chapter was written, this was the time of World War between America and Japan. And Dr. Sadao has become a famous doctor. He was a prominent doctor and a scientist also, but he was never sent with the troops by the general. Why? Means उसे कभी भी आर्मी के साथ, ट्रूप्स, सेना की टुकड़े के साथ उसे कभी भी एज अ डॉक्टर नहीं भेजा जाता था, बाहर अब्रोड नहीं भेजा जाता था. क्यों नहीं भेजा जाता था? इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. The old general was under medical treatment and he might need an operation. So Dr. Sadao was being kept in Japan. क्यों नहीं भेजा जाता था? क्योंकि जो ओल्ड जनरल था आर्मी का, या जापान का जो जनरल था, ही वॉज ओल्ड एंड ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ फेटल डिसीज. किसी खतरनाक घातक बीमारी से वो पीड़ित था और किसी भी समय उसे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती थी. एंड ही ओनली बिलीव ऑन डॉक्टर सदाओ. उसे सिर्फ डॉक्टर सदाओ पर ही विश्वास था, वो किसी डॉक्टर्स को लाइक नहीं करता था. दैट्स वाई he was being kept in Japan. Dr. Sadao was being kept in Japan. इसीलिए उसको हमेशा जापान में ही रखा जाता था. Dr. Sadao was missed. Hide outlines of a little island near the shore. One day when he was out of his house, he was standing on the railing of his house with his wife. What did he notice? He noticed he was missed. High outlines of a little island near the shore. Then it came creeping up the beach below his house. His wife Hannah came out and put her hand on his arms. It gave him pleasure. Then she laid her cheek against her arms. And there was mist all around the beach and their houses. चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था, धुंध छाई हुई थी, जो कि धीरे धीरे बीच की तरफ से बढ़ रही थी और उसने पूरे एरिया को कवर अप कर लिया था. और समय के साथ उसका घर भी जो था डॉक्टर सदाओ का, वो भी उससे कवर अप हो गया. मीन्स वो भी कोहरे में ढक गया. दोनों साथ में खड़े हुए थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए. At this moment both of them saw something black come out of the mist. ठीक उसी क्षण उन्होंने नोटिस किया
कि मिस्ट से कुछ उनको ब्लैक कलर की मतलब जो आकृति है वो कुछ क्रॉल करती हुई नजर आ रही है, खिसकती हुई, मतलब एक शेप दिखाई दी उन्हें धुंध में आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ क्लियरली दिखाई नहीं देती है, सिर्फ आप शेप नोटिस कर सकते हो। इट वॉज अ मैन एंड इट वॉज द शेप ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति की मतलब शेप थी। ही स्टेगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, वो लड़खड़ाते हुए कुछ कदम आगे बढ़ा, मतलब वो आकृति जो थी दिखाई दे रही थी मिस्ट में कि लड़खड़ाते हुए थोड़ी सी आगे बढ़ी। देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, उसके बाद धुंध जो थी, कोहरा जो था बहुत ज़्यादा था, उसने उसको बिल्कुल कवर कर लिया, ढक लिया। हना एंड सदाओ लीन ओवर द रेलिंग ऑफ द बरामदा, दोनों ने बरामदे की रेलिंग से नीचे झांक कर देखा, झुक कर देखा। दे सॉ अ मैन क्रॉलिंग ऑन हिज हैंड्स एंड नीड, उससे पहले उनको खड़े होकर वो लड़खड़ाता हुआ नजर आया, फिर उन्होंने उसको देखा नीचे झांक कर, तो देखा कि एक व्यक्ति जो है वो अपने घुटनों और हाथों के बल से क्रॉल करने की कोशिश कर रहा है, यानी घुटने के बल लेकर कोई जबरदस्ती चलने की कोशिश कर रहा है। देन ही फेल डाउन ऑन हिज फेस एंड ले देयर, एंड आफ्टर अ मोमेंट ही फेल डाउन ऑन हिज फेस एंड ले देयर, वो मुंह के बल गिर जाता है एंड लेट जाता है। दे थॉट दैट इट वॉज परहैप्स a fisherman who had been washed from his boat, वो लोग कल्पना करते हैं, दे इमेजिन कि परहैप्स ही इज अ फिशरमैन, कि या तो वो कोई फिशरमैन है who had been washed from his boat, शायद अपने बोट से वो गिर गया है या बह कर आ गया है। When they came towards him, they saw that he was wounded, जब वो उसके पास पहुँचे तो they noticed that he was a wounded person, कि वो एक घायल व्यक्ति है, शायद उसके कहीं घाव है। वो उन्होंने कैसे नोटिस किया, उसके पास की जो सैंड थी, जो रेत थी, वो उसने ब्लड सोक किया हुआ था, ब्लड से सनी हुई थी। He lay motionless, motionless था, he was unconscious, वो बेहोश था। They saw his face, Hannah whispered that he was a white man. Then they turned him and saw his face, उन्होंने उसको टर्न किया और उसका फेस देखा, and Hannah whispered he is a white man, मतलब ये white man है, it means he was an American. Sadao began to search for the wound because he was a doctor, that's why his fingers tried to search the wound of that man. It has been clear that he was a wounded person, घायल है, तो his fingers started to find out the wound, where is the wound of, and blood flowed freshly at his touch, and as his fingers touched to the wound, the blood starts to flow in a pressure, बहुत तेज़ी से फ्लैशली एट हिज टच, जैसे उसने उसको, उसकी फिंगर्स ने उस घाव को टच किया, एकदम से जो ब्लड है बहुत ही तेज प्रेशर के साथ बहने लगता है। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंच द फियरफुल ब्लीडिंग ही पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस, और उस ब्लड को कंट्रोल करने के लिए आप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देते हैं, तो उस समय उसके पास फर्स्ट एड बॉक्स तो था नहीं, समुद्र के किनारे पर अचानक से वहाँ गए थे, तो उसने वहाँ जो सी मॉस थी, समुद्र की काई टाइप का कुछ था, उसको लिया और उस घाव पर उसको पैक कर दिया उसको, सी मॉस को। द मैन वॉज अनकॉन्शियस, दो ही वॉज अनकॉन्शियस, he was fainted, but when he touched his wound, yeah, when he packed his wound which was flowing the blood, so he moaned with pain in his stupor, but he did not awaken, means बेहोशी में भी वो दर्द से करहा गया था, उसकी एकदम से करहा निकल गई थी, हालांकि वो बेहोश था लेकिन होश में नहीं आया, नहीं वो जागा। Good morning students, I am Rajni Gehlot. I am going to continue the chapter Enemy. Before it, I have told you that how Dr. Sadao find an enemy near the beach. So this is the chapter Enemy, which has been taken from the book Vistas. So when Hannah and Dr. Sadao got that person in wounded condition, and Sadao muttered, and when his fingers touched the wound, and there was the blood started to flow. जैसे ही उसके हाथ जो हैं, फिंगर्स जो हैं, उसको टच करती हैं या ढूंढती हैं उस घाव को, और उंगली लगते ही तेज़
खून बहने लगता है, वो उसे सीमोस से उसको पैक करके उस समय ब्लीडिंग को रोक देते हैं डॉक्टर सदाओ, बिकॉज ही वॉज अ फेमस डॉक्टर एंड ही वॉज सर्चिंग हाउ वुंड कैन बी clean properly. What shall we do with this man? When they saw the face of that man and they realized that he was a white man, he was an American. America and Japan were enemy at that time because this was the time of the World War. तो वो बड़बड़ाया कि हम क्या करेंगे इस व्यक्ति का. He said that the best thing that they could do was to put him back in the sea. And they decided that it will be better to throw this person back into the sea. ये better होगा कि हम इसको वापस समुद्र में फेंक दें. Hannah agreed with it. Hannah was also agree with him. Sadao explained that it was a difficult situation. If they sheltered a white man in their house, they would be arrested. If they turned him over as a prisoner, he would certainly die. They were staring upon the inert figure with a curious repulsion because Sadao was a doctor. So as a doctor, his soul was not permitting him to throw this person back into the sea. उसकी जो आत्मा थी वो उसको गवाही नहीं दे रही थी कि घायल व्यक्ति को इस तरीके से समुद्र में छोड़ दिया जाए या उसको उसी हालत में छोड़ दिया जाए. They were in dilemma. Both of them were in dilemma. Dilemma means दुविधा में थे कि what should they do? क्या करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए या उसको वापस समुद्र में फेंक देना चाहिए या इसे आर्मी को हैंड ओवर कर देना चाहिए, किसी पुलिस वाले को दे देना चाहिए. और दे हैव एज्यूम, वो एज्यूम कर चुके थे कि ये कोई मतलब प्रिजनर है जो कि जापानीज आर्मी से भागा हुआ है और उसमें इसके गोली लगी है. What were they thinking? They were thinking, Sadao explained that it was a difficult situation. There was a difficult situation in front of them. क्या थी वो? If they sheltered a white man. Situation क्या थी कि अगर वो उस white man को, एक अमेरिकन को, they give us shelter in their house, अपने घर में shelter देते हैं, shelter देते हैं, उसको अपने घर में उसको treatment देते हैं, तो they would be arrested. उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा एज अ ट्रेटर, उनको देशद्रोही करार करके उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा. If they turned him over as a prisoner, he would certainly die. और अगर वो इसको as a prisoner इसको अरेस्ट करा देते हैं या पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट, तो ही विल सर्टेनली डाई, तो निश्चय वो मर जाएगा. यानी दोनों तरफ से उनको मतलब दुविधा थी कि करें तो करें क्या. They were staring upon the inner, both of them were standing there and were staring that unconscious person. और दोनों ही उसको घूर कर देख रहे थे. Miss both of them were very kind-hearted person. Then they tried to find out what he was. इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि who was that person. So now they were trying to find out who was that person. That was an enemy, but what was his position, what was his designation, they wanted to know. So he looked American. वो अमेरिकन तो दिखाई देता था. And the battered cap had faint lettering. उसने एक कैप पहनी हुई थी अपने सर पर जो कि पानी से गीली थी और काफ़ी टाइम से पानी में रहने के कारण उस पर जो वर्ड्स लेटर्स लिखे हुए थे वो फेंट हो चुके थे. और उसमें क्या लिखा हुआ था, US नेवी, फेंट लेटर्स में, यानी बहुत ही हल्के वर्ड्स में लिखा हुआ था US Navy. Means he belongs to US Navy. He was an American who belongs to Navy. And they concluded that he was a sailor from an American warship. और उन्होंने कंक्लूजन निकाल लिया था कि ये कोई सेलर है अमेरिकन वॉरशिप का, एंड हु वॉज अरेस्टेड बाय द जापानीज आर्मी, जिसे कि शायद जापानीज आर्मी के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है. एंड द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, और अभी ये प्रिजनर है, कैदी है, युद्ध का कैदी है जापानीज आर्मी के द्वारा, जिसे शायद अरेस्ट कर लिया गया था. एंड ही एस्केप्ड एंड वाज वुंडेड इन द बैक. और इसने क्या किया है, इसने कोशिश की वहाँ से बचकर भागने की. ही ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द आर्मी एंड दैट्स व्हाई ही वाज वुंडेड, दैट्स व्हाई ही वाज शूटेड एंड हैज़ बिकम वुंडेड. और इसको शूट कर दिया गया और ये इस तरीके से घायल हो गया है. मीन्स उन्होंने ये उसकी कैप पढ़ने के बाद उन लोगों ने ये आइडिया निकाला.
Hannah asked Sadao if they were able to put him back into the sea. हना पूछती है क्या वो इसे वापस समुद्र में फेंक देंगे, क्या उसको वापस वहीं समुद्र में छोड़ देंगे ऐसा. सदाओ हेजिटेटेड. सदाओ थोड़ा हेजिटेशन फील किया उसने, उसको मतलब थोड़ा झिझक हुई. इफ द मैन हैड बीन होल he could be turned over to the police without difficulty as he was his enemy. कि अगर ये ओवर होता मीन्स अगर ये व्यक्ति सही होता तो शायद हम इसको हैंड ओवर कर देते, बिना किसी परेशानी के हम इसको पुलिस को हैंड ओवर कर देते. ऑल अमेरिकन्स वर हिज एनिमी, क्योंकि सारे अमेरिकन जो थे वो डॉक्टर सदाओ के या जापानीज के एनिमी थे. बट सिंस ही वॉज wounded they should not throw him back to the sea. क्योंकि now he was wounded, that's why it was not the duty of a doctor that they will left him in the sea. ये उनकी ड्यूटी नहीं है कि वो एक wounded person को समुद्र में छोड़ दें, ऐसे ही छोड़ दें या उसको समुद्र में वापस फेंक दें. Hannah observed that there was only one thing left to do. हन्ना ने फिर ऑब्जर्व किया कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है. वो क्या है? दे मस्ट कैरी हिम इन टू देयर हाउस, कि दे शुड कैरी दैट पर्सन इन टू देयर हाउस. इफ बिकॉज दे ट्राई टू फाइंड आउट मैनी वेज टू फाइंड दिस द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. बहुत सारे रास्ते उन्होंने ढूंढे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए, और फाइनली उसको एक ही रास्ता दिखाई दिया. वो था कि उस व्यक्ति को उन्हें अपने घर ले जाना चाहिए. सदाओ वॉज नॉट श्योर अबाउट द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट्स. सदाओ को नहीं पता था कि उसकी सर्वेंट्स का क्या रिएक्शन होगा इस वाइट मैन को देखने के बाद. हना सजेस्टेड दैट दे मस्ट टेल द सर्वेंट्स दैट दे इंटेंडेड टू गिव हिम टू द पुलिस. तो हना ने डॉक्टर सदाओ को सजेस्ट किया कि वो सर्वेंट्स को कन्विंस करेगी, समझाएगी कि वो उसे इसलिए लाए हैं ताकि इसको ट्रीटमेंट करके इसको पुलिस को सौंप सके, उसको हैंड ओवर कर सके. दे कैन हैंड ओवर टू द पुलिस टू दिस वाइट मैन. शी सेड दैट दे मस्ट डू सो अदरवाइज ऑल ऑफ देम वुड बी इन डेंजर. उसने इसलिए ऐसा कहा कि अब वो उन्हें ऐसा करना पड़ेगा, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो उन सारों के जीवन जो खतरे में पड़ जाएगा. दे विल नॉट हैंड हिम ओवर टू द पुलिस दैट दे विल बी डेंजर. अदर टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, ही वॉज वेरी लाइट, एंड फाइनली दे गॉट a decision that they will save the life of that person. So they both of them lifted that man. उसको दोनों उठाते हैं, and he was very light. When they lifted him and they found that he was very light weighted. Why? They carried him up the steps and into the side door of the passage. वो इतना हल्का क्यों था? क्योंकि वो ऐसा था जैसे वेदर होता है, पंख होते हैं, पंख की तरह जो था वो बहुत हल्का हो चुका था. क्यों हो गया था? डॉक्टर ने ये आइडिया लगाया कि शायद काफ़ी लंबे समय से इसने पेट भरकर भोजन नहीं किया, जिसकी वजह से ये इतना लाइट और हिज बॉडी हैज़ बिकम लाइक अ स्केलेटन. दे कैरिड हिम अप, और वो उसे सीढ़ियों से अपने बैक साइड के डोर से पैसेज से होकर अंदर ले जाते हैं. दे कैरिड हिम टू एन एम्प्टी बेडरूम, वो उसे एक खाली रूम में लेकर बेडरूम में ले गए. सिंस द मैन वॉज क्वाइट डर्टी, और ये बेडरूम कौन सा था? सदाओ के फादर का. सदाओ के फादर जो थे, जब से उनकी डेथ हुई थी तब से ये बेडरूम को कभी यूज नहीं किया गया था. सिंस द मैन वॉज क्वाइट डर्टी, क्योंकि जो मैन था, जो वाइट मैन था, डर्टी था, बहुत गंदा था, रेत लगी हुई थी, क्योंकि रेत के समुद्र में गिरा हुआ था, वो रेत में पूरी तरीके से समा हुआ था. So Sadao suggested that he had better to be washed. तो सदाओ ने हना को सजेस्ट किया कि it will be better to wash him. Firstly, पहले हमें उसको वॉश करना होगा. If she fetched the water, he would wash the man. He said to Hana that if she will fetch the water, then he washed him. अगर वो पानी ले आएगी, गर्म पानी, हॉट वाटर, देन ही वुड वॉश हिम, देन सदाओ विल वॉश हिम. हना कुड नॉट बेयर हिम टू टच द मैन, बट हना
could not bear it that her husband टच एन एनिमी अ वाइट मैन. वो नहीं चाहती थी कि उसके हस्बैंड जो किसी वाइट मैन को टच करें. शी ऑफर टू टेल द मेड यूमी. उसने ऑफर किया कि ठीक है हम यूमी से कह देंगे. यूमी इज द मेड सर्वेंट ऑफ डॉक्टर सदाओ एंड हना. Sadao took the responsibility of informing others. Sadao said, "Okay, you can request to Yumi, or I will try to say to other servants." वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो अदर दूसरे सर्वेंट्स को इन्फॉर्म करेगा. ही विल ट्राई टू टेक द हेल्प ऑफ दोज सर्वेंट्स. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रजनी गहलोत फ्रॉम Bhaurav Devra Saraswati Vidya Mandir. I am going to continue the chapter anime. So in this chapter I am telling you about Dr. Sadao and Hana and an enemy who was an American. He was a white man who was brought by them to their houses, जो कि in a wounded condition. So the pallor of the unconscious. Now what happened there in the house of Dr. Sadao? Because this was a dirty man. He due to the sand of the sea, he was very dirty. That's why Dr. Sadao decided to wash the person, and they informed to their servants. Hannah told about this to her maid Yumi. The pallor of the unconscious man's face moved him first to stop and feel his pulse. So before going to the servants, the doctor check the face, the pale face of the man. When he saw the pale face of that man, he was worried. That's why he wanted to check the pulses of that person, whether he is alive or not. So firstly he moved to stoop and feel his pulse. उसकी pulse को check करता है. It was faint, but it was there. When he checked the pulses, he found out that it has become fainted. Means उसकी पल्स जो थी धीरे धीरे फेंट हो रही थी, बट इट वॉज देयर. मीन्स ही वॉज अलाइव. लेकिन पल्सेस थी, धड़कन थी उसकी उसमें. ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैंस कोस्टल एंड ही ऑल्सो चेक हिज ब्रेस्ट. उसकी छाती को भी चेक करता है कि क्या मतलब वो सांस ले रही है. एंड द हार्ट टू वॉज येट अलाइव. हार्ट भी उसका अलाइव था. इट मीन्स ही वॉज अलाइव. द heart was doing work. Sadao observed that he would die unless operated upon. सदाओ ने ऑब्जर्व किया कि अगर हमने इसका ऑपरेशन नहीं किया तो ये शीघ्र ही इसकी डेथ हो जाएगी. द मैन वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट इवन 25, क्योंकि बहुत ही यंग था, शायद 25 ईयर्स का भी नहीं था. सदाओ ने नोटिस किया. द मैन हैड टू बी वॉश्ड फर्स्ट. पहले हमें इसको वॉश करना होगा. However, the servants refused to do so. They did not want their master to heal the enemy. और लेकिन जो सर्वेंट्स थे उन्होंने उसको वॉश करने से मना कर दिया. यूमी ने भी, यूमी वॉज द केयर टेकर ऑफ देयर चिल्ड्रन. They had a daughter and a son of 3 months here. 3 months. Okay. So Yumi forbade to wash the enemy. After seeing his face, वो उसका चेहरा देखने के बाद एकदम से मना कर देती है. हना से that she will not wash that enemy, that person. Hana washed the man till his upper body was quite clean. Then Hana washed the man herself. हना उस व्यक्ति को खुद साफ करती है. पहले उसकी बॉडी को, अपर बॉडी को वॉश करती है जब तक वो क्लीन नहीं हो जाती. सदाओ पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स अपॉन अ स्टेराइज टॉवल. उसके बाद सदाओ आता है. ही पुट ऑल हिज इंस्ट्रूमेंट, स्टेराइज करके अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेके आता है ऑफ ऑपरेशन. ही कीप देम ऑन अ स्टेराइज टॉवल. और उसको स्टेराइज टॉवल पर इंस्ट्रूमेंट्स को रख देता है. ही बिगेन टू वॉश द मैंस बैक केयरफुली. उसके बाद वो हना की हेल्प करता है उसको टर्न करके उसको बैक साइड को वॉश करने में. ही आस्क्ड हना टू गिव द एनेस्थेटिक इफ ही नीडेड इट, एंड ही ऑल्सो आस्क्ड हना दैट शी विल हेल्प हिम to give him anesthesia whenever he needed it during the operation. ऑपरेशन के समय जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो हना जो है उसकी हेल्प करेगी उसको एनेस्थीसिया देने में. हना choked.
हना उसको हाँ बोल देती है, हालांकि उससे पहले हना ने कभी उसकी मतलब एनेस्थीसिया नहीं दिया था, एंड ही हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन बिफोर इट। इससे पहले उसने कभी कोई ऑपरेशन नहीं देखा था। तो फर्स्टली व्हेन ही सॉ द ब्लड, द फ्लोइंग ऑफ द ब्लड, शी चोक्ड। जैसे ही वो एकदम ऑपरेशन के समय तेजी से बहते हुए ब्लड को देखती है, एकदम से उसको घबराहट होने लगती है, उसे वॉमिटिंग होने लगती है, और वो भागकर रूम से बाहर चली जाती है और गार्डन में मतलब वॉमिट करने लगती है। शी clapped her hands to her mouth and ran out of the room. He heard her retching in the garden. She had never seen an operation. डॉक्टर सदाव उसकी उबकाई की आवाज़ सुनता है अपने रूम में, जो कि गार्डन में वो वॉमिट करने की कोशिश कर रही थी, एंड इससे पहले क्योंकि उसने कभी ऑपरेशन नहीं देखा था। हालांकि वो उसकी हेल्प करना चाहता था अपनी वाइफ की, लेकिन उस एनीमी की वजह से ही कुड नॉट हेल्प हर। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर इट, हाउ डिड शी गिव एनेस्थीसिया टू द एनीमी, टू द पेशेंट। सदाव प्रोसीडेड स्विफ्टली, हना केम इन। सदाव जो था अपने काम तेजी से कर रहा था। एज अ डॉक्टर ही वॉज बिजी टू डू हिज वर्क। सो हना केम इन, व्हेन ही वॉज डूइंग हिज वर्क, हना एंटर इन टू द रूम अगेन। सदाव आस्क्ड हर टू सैचुरेट द cotton and hold it near his nostrils. Sadav told Hana that how will she give anesthesia to the patient. She said to her, take a cotton and saturated it with the anesthesia. कहती इस पर कुछ बूंद जो है एनेस्थीसिया की डालो, उसको कॉटन को मतलब उसमें, और उस कॉटन को उसकी नोस्ट्रल्स के पास ले जाकर रखो पेशेंट के। एंड she had to move it away a little when he breathed out, and he also instructed her that when he had started breathe badly, then she will remove it. जब वो अगर तेजी से सांस लेने लगे, हाँफने लगे, तो वो उसको उसकी नॉस्ट्रिल से रिमूव कर ले, हटा दे। It was just near his kidney. Then Sadav got busy. And Sadav started to do his work. He was busy in his work in operation. He felt the tip of his instrument strike against something hard. At the same time, he noticed that he felt that his instrument, tip of his instrument was strike against something hard. उसका जो इंस्ट्रूमेंट था वो उसका जो टिप था वो किसी हार्ड चीज़ से टकराया। So it was just near his kidney, which was just near his kidney. जो hard thing थी वो उसके ठीक किडनी के नियर थी। Then with the cleanest and most precise incision, the bullet was out. और उसने बहुत ही सफाई के साथ अपने इंस्ट्रूमेंट से उस बुलेट को किडनी के पास से बाहर निकाल लिया। The man quivered, but he was still unconscious, though at that time the man was also unconscious. But when he pulled out the bullet, he was quivered, कांप गया वो स्ट्रम्बल। जैसे उसने उसको बाहर निकाला बुलेट को, वो एकदम से बेहोशी में भी बुरी तरीके से कांप गया था। Sadav gave him an injection and the man's pulse grew stronger. सदाव ने जब नोटिस किया कि उसकी जो पल्स थी उसके बाद मतलब डाउन होने लगी, कम होने लगी, तो उसने तुरंत उसको बचाने के लिए, उसकी पल्सेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसने उसको एक इंजेक्शन दिया, और उसके बाद उसकी पल्स जो थी और स्ट्रॉन्ग हो गई। मीन्स अब वो नॉर्मल होने लगा था। Hana had to serve the young man herself, for none of the servants would enter the room, because all the servants forbid to help that enemy. So they did not enter into the room of the enemy, of that white man, of that wounded man. So Hana had to serve him herself. Hana को उसकी सेवा खुद करनी पड़ती थी। The man grew stronger day by day. और उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो जो मैन था डे बाई डे स्ट्रॉन्ग होने लगा, सही होने लगा। द सर्वेंट डिसाइडेड टू क्विट इफ देयर मास्टर केप्ट द एनिमी हिडन देयर, एंड देन ऑल द सर्वेंट्स decided that if their master did not will help this person, will give treatment of this person anymore, then they will leave the house of their house.
उन्होंने डिसाइड किया कि अगर उनका एनिमी अभी भी इस व्यक्ति को अपने उनका मालिक अभी भी इस व्यक्ति को अपने घर में छिपा कर रखेगा तो वो उस घर को छोड़ देंगे। एंड ऑल ऑफ देम लेफ्ट द हाउस ऑफ डॉक्टर सदाउ टुगेदर। सबने एक साथ घर को छोड़ दिया। हना कैरिड द मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर। हना प्रिजनर को मॉर्निंग फूड लेकर जाती है। ऑन कमिंग बैक शी आस्क्ड सदाओ why they could not see clearly what they ought to। और उसके बाद वो सदाओ से बात करती है कि वो ये क्यों नहीं देख पा रहे क्लियरली कि उन्हें इस व्यक्ति का क्या करना है, अब क्या करना चाहिए। ट्रीटमेंट कर चुके हैं एज अ डॉक्टर, अब आगे क्या करना है उन्हें ये बात डिसाइड करनी पड़ेगी। और उसके बाद सदाओ क्या डिसीजन लेते हैं हम अगले उसमें पढ़ेंगे वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। In the afternoon, a messenger came in official uniform. He asked Dr. Sadao to come to the palace at once as the old general was in pain. एक दिन शाम के वक्त एक मैसेंजर जो है वो यूनिफॉर्म में ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म में सदाओ के घर आता है। हना watched him, हना उसको देख लेती है and she was frightened that perhaps he came there to arrest Dr. Sadao। Means she thought that servants had told to the general that and they had given the shelter to an enemy। उसे लगा हना ने ये मतलब सिर्फ इमेजिन किया कि शायद ऑफिसर जो है वो डॉक्टर सदाओ को अरेस्ट करने आया है, कि हो सकता है सर्वेंट्स ने जो है जनरल को ये सारी बातें बता दी होंगी। सो ही आस्क्ड डॉक्टर सदाओ टू कम टू द पैलेस, बट मैसेंजर क्या कहता है, डॉक्टर सदाओ को पैलेस बुलाता है, यानी तुरंत उसको महल में बुलाया गया, जनरल के द्वारा महल में बुलाया गया। क्यों? बिकॉज द जनरल वॉज इन पेन, क्योंकि जो जनरल था वो पेन में था, उसे डॉक्टर की ज़रूरत थी। हना ब्रीज अ साई ऑफ रिलीफ, और उसके बाद हना जो है वो चैन की सांस लेती है कि थैंक्स गॉड they did not come there to arrest Dr. Sadao। When Sadao came to say goodbye, she revealed her fear। जब सदाओ ने उसको गुड बाय कहा जनरल के यहाँ जाने से पहले, तो वो अपना जो डर है उसको छिपा लेती है। She had thought that they had come to arrest him, क्योंकि उसे क्या लगा था कि शायद वो उसको अरेस्ट करने आए हैं डॉक्टर सदाओ को। सदाओ प्रॉमिस टू गेट रिड ऑफ दैट मैन फॉर हर सेक। सदाओ से प्रॉमिस करता है हना से कि वो उसके लिए जल्दी ही इस व्यक्ति से छुटकारा पाएगा, कुछ तरीका ढूंढेगा इस व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए, इस एनिमी से। सदाओ टोल्ड द जनरल अबाउट द मैन ही हैड ऑपरेटेड अपॉन। जब सदाओ जनरल के पास जाता है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, तो वो टाइम पाकर उसको समय पाकर उसे बता देता है कि उसने किस तरीके से एक अमेरिकन का अपने घर में इसको शेल्टर दी है और उसको ऑपरेट किया है। द जनरल एक्नॉलेज्ड वाई सदाओ वॉज डिस्पेंसेबल टू हिम। जनरल जो ही जानता था कि वो सदाओ पर क्यों विश्वास करता था, यही कारण था कि सदाओ ही वॉज अ फेमस डॉक्टर। ही डिड नॉट केयर अबाउट द कास्ट, अबाउट द नेशनलिटी और कलर एक्सेट्रा। उसने कभी, क्योंकि डॉक्टर जो था सदाओ जो था वो कभी भी किसी तरीके की पार्शियलिटी नहीं करता था, भेदभाव नहीं करता था, यही कारण था कि वो डॉक्टर सदाओ को ज़्यादा मानता था और उसकी हेल्प करने की मदद लेता है। रेदर देन टू गिव हिम पनिशमेंट ही tried to solve the problem। The general promised to send his private assassins to kill the man and remove his body। जनरल जो है उससे प्रॉमिस करता है डॉक्टर सदाओ से कि वो क्या करेंगे, अपने कुछ प्राइवेट जो है एसेसियंस कौन होते हैं, किलर्स, कि उनके कुछ प्राइवेट किलर्स हैं, वो उसको उस व्यक्ति को मारने के लिए उनके घर भेजेंगे और वहाँ से उसकी बॉडी भी, मतलब बॉडी को भी रिमूव करा देंगे। एक्सपर्ट वो किलर्स को भेजेगा जो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ब्लीड किए बिना किसी व्यक्ति को कैसे मारा जा सकता है और उसकी बॉडी को कैसे गायब किया जा सकता है। मतलब वो किसी तरीके के एविडेंस नहीं चाहता था जनरल कि कोई सबूत छोड़े जिससे सदाओ जो है फंस जाए, सदाओ को जो है सजाए मौत की सज़ा देनी पड़े, क्योंकि वो जानता था अगर सबके सामने ये बात आ गई तो उसको सदाओ को पनिशमेंट करना पड़ेगा, उसको सज़ा देनी पड़ेगी
और अगर उसने सदाओ को मौत की सज़ा दे दी तो और उसकी डेथ हो गई तो फिर उसका ट्रीटमेंट कौन करेगा। तो यहाँ पर जो जनरल था यहाँ भी सेल्फिश दिखाया गया है। So he asked Sadao to leave the outer partition of the white man's room to the garden open while he slept. इसीलिए वो डॉक्टर सदाओ को सजेस्ट करता है कि रात को उस एनीमी के जो पेशेंट है उसका जो कमरा है, उसके जो दरवाज़ा है बैक साइड का, गार्डन साइड का, उसको खुला छोड़ दे, मतलब उसको लॉक ना करें। डॉक्टर सदाओ कहता है कि वो हमेशा खुला रहता है, कभी उसको लॉक नहीं करते। अब आगे क्या होता है हम देखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रजनी गहलोत, PGT English from Bhaurav Devraj Saraswati Vidya Mandir. In the last video, I told you about the author and the theme of the chapter and the characters of this chapter. Now I am going to tell you summary of the chapter in brief. Okay. The name of the chapter is The Enemy, which has been taken from the book Vistas. Okay. So I am going to start the summary of this chapter. Sadao, a Japanese surgeon, and these are the main points of the chapter. Okay. Gist of the enemy means main points of this chapter. Here as a brief summary of the chapter. Sadao, a Japanese surgeon, finds a wounded American soldier on the beach near his house. Sadao, who is a Japanese doctor, he found a wounded American on the doorstep of his house. And because his house was at the coast, American coast, that's why the soldier was on the beach which was near his house, and he is unable to throw him back, though he was his enemy, as he was a doctor and his first duty was to save a life. When he got an American, then he wanted to throw him into the sea, because he was an American and all the Americans were the enemy of the Japanese. So, and he was doctor, and but finally he decided to save the life of that American. Hana, his wife, though initially reluctant because it was dangerous for all, including the children, to keep the enemy in the house, joins her husband in operating and nursing the enemy soldier back to the health, even though the servants desert the house. Hana, his wife, she also hates to the Americans, but as a humanism, and she saved the life of that American. She helped her husband to treated him. She served him dinner and lunch, etc., and she take care of him like a nurse, because all the servants resist to serve the Americans, and they also left the house of Dr. Sadao, but she did not care about it. She only take care of that person as a human being. Hana assists Dr. Sadao in operating the soldier in spite of her physical discomfort and agitation. Hana hesitated and she also feel discomfort during the operation, but she helped her husband. Though it was wartime and all hands were needed at the front, the general did not send Sadao with the troops, as he is an expert surgeon and the general needed him, because this was the time of the war. That's why everybody needs the help. All hands were needed at the front, means सभी को help की आवश्यकता थी, and the army also needed the help of the doctors. But Dr. Sadao never sent, the old general of the army never sent Dr. Sadao with the troops, with the army. Why? There we came to know that he was a selfish person due to his requirement, because he needed a surgeon at the critical situation,
at the critical situation of him. That's why he never sent डॉक्टर सदाव विद द ट्रूप्स. कभी भी उसको डॉक्टर्स की जरूरत पड़ सकती थी एंड ही ओनली बिलीव्ड ऑन डॉक्टर सदाव. दैट्स व्हाई ही नेवर सेंड. उसको कभी भी आर्मी के साथ या ट्रूप्स के साथ नहीं भेजता था. सदाव टेल्स हिम अबाउट द एनिमी सोल्जर बट ही डज नॉट टेक एनी एक्शन एज ही इज सेल्फ absorbed and forgets his promise that he would send his private assassins to kill the enemy and remove his body. Sadav was a patriotic also as well as a doctor, as well as a human beings. He was also a patriot, true patriot, and he also he told all the truth about that American to the old general, that he gave a shelter to the American in his house, and he also told him that he operated him. And general was selfish, and he did not want to give him punishment, so he gave him solution that he will send his assassins, means his killers, to kill that American and to remove his body. But he forget his promise. Taking advantage of the general's self-absorption, Sadav decides to save the soldier's life. And Dr. Sadav take the advantage of the selfishness of old general. So he decided to save the life of that American. After the soldier is out of the danger, Dr. Sadav helps him to escape from his house to safety. And then when he took the decision of to save the life of that American. Then the soldier is out. When he came to know, and he was confirmed that the soldier is safe physically, he was able to go anywhere. Then he saved his life, and when he was out of danger, he helps him to escape from his house to safety. So this shows the humanism of Dr. Sadav as a doctor. So this was the gist of the enemy. Thank you, students. Now we will continue the main summary in detail the next video. Hello students, I am Rajni Gehlot, PGT English from Bhaurav Devraj Saraswati Vidya Mandir. Now I am going to continue our chapter The Enemy from the book Vistas, and this is the 5th part of the book chapter. Okay. So in the last video I have told you about the enemy and the general, and there was the discussion, and there was a decision which was taken by Dr. Sadav and the general, and general promised him that he will send his killers to kill the enemy, and he also said to him to open the door of the room of that enemy. Then what happened after it, I'll tell you. Okay, let's see. Sadav went home, thinking over the plan. He would tell Hana nothing. And Sadav went to his home, and he did not tell about this to Hana. वो हना को कुछ नहीं बताता, because he know that if Hana came to know about it, then she will be frightened with the presence of the killers, the murderers. Okay. He was surprised to see the young American out of bed and preparing to go into the garden. He complained that the muscles on one side felt stiff. So when he went into the room of the American, the name of that American was Tom. Okay. So he was surprised to see that he was standing and was going to garden. He was going to prepare to go to the garden. So
He complained that the muscles on one side felt stiff, and he also complained to Dr. Sadao that one side of his muscles कि उसके जहाँ पर ऑपरेशन हुआ है वहाँ की एक साइड की जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो चुकी हैं. स्टिफ मीन्स उसे फीलिंग हो रही है कि वो नम है, एकदम सुन्न हो गई है. Dr. Sadao said that exercise and massage will be helpful. He told him that if you will do exercise and massage, then you will feel better. He then asked Tom, the young American, to go to bed. Sadao slept badly that night. Then he suggested him to go to the bed rather than to go to the garden, because till now he was weak. And Dr. Sadao also went to his bed, but he could not sleep that night because he was waiting for the essence of the old general, क्योंकि ओल्ड जनरल ने प्रॉमिस किया था कि वो अपने एसेंस यानी किलर्स को भेजेगा उस अमेरिकन को मरवाने के लिए. So he was thinking about the scene that day the wind was very strong. हवा बहुत तेज चल रही थी, तो जरा से भी टहनियों के आवाज़ जो थी, खड़खड़ाहट की आवाज़ उसको जगा देती थी. वो एकदम से डरकर जाग जाता था और एज्यूम करने लगता कि शायद किलर्स आए और उसको अपने साथ ले गए हैं उसको मारकर, क्योंकि डॉक्टर ओल्ड जनरल ने उनसे प्रॉमिस किया था कि उसकी जो किलर्स हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट हैं. दे नो इनवर्ड विलिंग्स एंड दे ऑल्सो कैन रिमूव द डेड बॉडी ऑफ दैट पर्सन. And next, what happened next morning? Next morning, Sadao went to the guest room and found him asleep. अब वो इस उम्मीद से उसके कमरे में गया कि वो अमेरिकन जो है उसको वहाँ से हटा दिया गया होगा या उसको मार दिया गया होगा. लेकिन जैसे ही वो रूम में पहुँचता है तो वो अपने रूम में अपनी बेड पर आराम से सोया हुआ था. द सेकेंड नाइट ऑल्सो पास्ड. सेकेंड नाइट भी ऐसी गुजर जाती है. सेकेंड नाइट में भी उसे लगता है कि तेज़ हवा चल रही थी और किसी उसकी ऐसे लग रहा था जैसे कि घास पर भारी कदम रखे जा रहे हैं, मतलब कोई भारी सामान को लेकर जाता है तो फुट स्टेप्स जो हैं उसकी साउंड चेंज हो जाती है. लेकिन द यंग मैन वॉज स्टिल देयर. नहीं, नेक्स्ट मॉर्निंग द यंग मैन वॉज ऑल्सो इन हिज रूम. He had saved himself. Sadao went into his room. Sadao उसके कमरे में गया तो उसने देखा कि he was looking smart that day because he had shaved. उसने शेविंग वगैरह कर ली थी. And there was a faint color in his cheeks. हालांकि उसके गालों का जो कलर था वो फेंट हो चुका था due to the weakness. Dr. Sadao told him that he was quite well then, and when he checked him up, then he told him that he is better now. He offered to put his boat on the shore that night, and third night also. उसने 3 रात जो था उन किलर्स का वेट किया. तीसरी रात क्या हुआ, बारिश तेज़ पड़ने लगी थी और तेज़ बारिश के कारण जो पानी की आवाज़ थी उससे छत से जो गिर रही थी उससे अचानक से मतलब बहुत तेज़ क्रैश की आवाज़ होती है और डॉक्टर सदाओ की वाइफ भी जाग जाती है, उसका बेटा भी जाग जाता है उनकी आवाज़ सुनकर. और फाइनली मतलब वो किलर्स नहीं आते. और जब नेक्स्ट मॉर्निंग उसके कमरे में डॉक्टर सदाओ जाता है तो उसका जो माइंड था एकदम चेंज हो चुका था और उसने डिसाइड किया कि अब वो इस व्यक्ति को बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ओल्ड जनरल जो था शायद वो भूल चुका था अपना प्रॉमिस जो उसने डॉक्टर सदाओ से किया था. और इसी वजह से उसने अपना माइंड सेट किया कि अब इस व्यक्ति को बचाना चाहिए. अगर उसने उसका जीवन बचाया है तो उसने सोचा कि क्यों नहीं अब इस अमेरिकन को, अगर वो पहले उसने उसका चेकअप किया, बॉडी चेकअप किया कि ही वॉज वेल और नॉट, ही इज़ फीलिंग बेटर और नॉट, ही इज़ एबल टू गो फ्रॉम दिस हाउस or not. So that night he was quite well. Then he offered to put his boat on the shore that night. और उसने उसका चेकअप करने के बाद कहा क्या आप तुम इस योग्य हो और कि तुम बोट को लेकर इस कोस्ट से, इस किनारे से आइलैंड तक पहुंच सकते हो.
उसने एक बोट उसको ऑफर की, अपनी ही बोट थी उसकी। इट वुड हैव फूड एंड एक्स्ट्रा क्लॉथिंग इन इट, और उसमें उसने उसके लिए एक्स्ट्रा भोजन और एक्स्ट्रा क्लॉथ्स उसने जो कि दिन में लाकर पहले से ही अरेंज करके उसने रख लिए थे, वो उसको ऑफर किए। टॉम माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, और उसने कहा कि तुम इतने कैपेबल हो कि इस नाव को खेकर उसको रो करके तुम इसे आइलैंड तक ले जा सकते हो, समुद्र के इस किनारे से वो जो छोटा सा आइलैंड है वहाँ तक तुम जा सकते हो। इट हैड नॉट बीन फोर्टिफाइड, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। नो बडी लिव्ड देयर एज इट वॉज सबमर्ज्ड इन स्टॉर्म, और ये जो आइलैंड है यहाँ पर कोई नहीं रहता, एकदम आइसोलेटेड है, क्योंकि स्टॉर्म के सीजन में जब तूफान आते हैं, बारिश आती है, तो उस समय ये उसमें डूब जाता है, पानी में डूब जाता है, इसलिए वहाँ पर कोई नहीं रहता। सिंस इट वॉज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, क्योंकि ये स्टॉर्म का सीजन नहीं है, सो ही कुड लिव देयर टिल ही सॉ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय, तो तब तक ये उस आइलैंड पर रुक सकता है जब तक कि इसको कोई कोरियन फिशिंग बोट नहीं दिखाई देती। अगर वहाँ से कोई कोरियन फिशिंग बोट उस आइलैंड के नियर बाय होकर गुजरे तो वो उसकी हेल्प से जापान से बाहर निकल सकता था। और इसके अलावा डॉक्टर सदाव ने टॉम को कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी। क्या इंस्ट्रक्शन थी? As soon as it was dark, Sadao made preparations to help the young man escape. अब ये कहते हैं कि जैसे ही अंधेरा होता है, डॉक्टर ने सदाओ ने उसके सारे अरेंजमेंट किए उसे वहाँ से बचाकर भगाने के लिए। He gave him his flashlight, उसने अपनी फ्लैश लाइट भी दे दी जो कि उसके पास सिंगल थी और जिसे वो रात में पेशेंट को देखने जब जाता था यूज किया करता था, लेकिन इस समय उसने उसको उस अमेरिकन को दे दी। He asked him to give him 2 flashes, और उसको क्या इंस्ट्रक्शन दी कि he asked him to give him 2 flashes as the sunset in case, कि अगर in case his food ran out, जब उसका भोजन अगर खाना ख़त्म हो जाता है तो उस समय वो सनसेट के समय जब सूर्य छिप रहा हो उस समय उसे 2 फ्लैश लाइट जलाए, मतलब 2 बार लाइट को फ्लैश करे ताकि सदाव को पता चल जाए कि उसके खाने का सामान ख़त्म हो चुका है। इन केस ही वॉज स्टिल देयर एंड ऑल राइट ही वॉज टू सिग्नल हिम ओनली 1, अगर वो मतलब वहाँ पर अपनी प्रेजेंस होने का उस आइलैंड पर सेफ है, मतलब प्रेजेंस है, अपनी प्रेजेंस की कब तक वहाँ है तो अपनी प्रेजेंस को वो सिंगल फ्लैश से उसको सिग्नल देगा, उसको एक फ्लैश लाइट फ्लैश करेगा और उसको इस बात का अनुभव कराएगा कि हाँ अभी वो उस आइलैंड पर ही ठहरा हुआ है और सेफ है, यानी अपनी सेफ्टी की जानकारी सिंगल फ्लैश लाइट से देगा वो। He was warned not to signal in darkness, और साथ में उसको वार्निंग भी दी अंधेरे में वो सिग्नल नहीं देगा। Why? If he will give signal in night, then he will be caught, उसको पकड़ लिया जाएगा। Okay? And for it would be seen the prisoner was now dressed in Japanese clothes, और उसने क्या किया, उस प्रिजनर को, अमेरिकन प्रिजनर को सदाव ने, देखो कितनी समझदारी से उसने उसको वहाँ से बचाया, क्योंकि वो अमेरिकन था तो उसको जापानीज क्लॉथ्स दिए, जापानीज कपड़े ड्रेसअप दी, और उसके जो हेयर्स थे वो गोल्डन कलर के, आपने देखा होगा कि अमेरिकन जो होते हैं उनके बाल जो हैं तो वो गोल्डन कलर के होते हैं, तो उनसे उनकी पहचान हो जाती है, तो उसने उसके सर पर ब्लैक कलर का कपड़ा बांध दिया है। ब्लैक क्लॉथ वॉज रैप्ड अराउंड हिज ब्लॉन्ड हेड, ठीक है, ब्लॉन्ड हेड को उसको रैप कर दिया कपड़े से। ही फाउंड द वे टू द बोट, सदाव वेटेड टिल ही सॉ 1 फ्लैश फ्रॉम द शोर, और उसके बाद उसने उसको समुद्र के किनारे भेज दिया, उसको रास्ता बता दिया बोट तक का कि वहाँ तक जाए। और फिर देखिए डॉक्टर सदाव तब तक वो डेली उसका वेट करता था अपनी रेलिंग पर जब तक कि उसको मतलब फ्लैश लाइट आनी बंद नहीं होगी, यानी जब उसके पास कोई भी सिंगल फ्लैश नहीं आई उसको ये श्योर हो गया कि अब वो वहाँ से सेफ निकल गया है, तब तक वो उसका डेली वेट करता था। और इस तरीके से डॉक्टर सदाव ने एन अमेरिकन की न केवल उसकी जान बचाई उसका ऑपरेशन करके, बल्कि उसको वहाँ से जीवित बचाकर एस्केप करने में भी उसकी मदद की। तो दिस शोज द ह्यूमैनिटी ऑफ अ पर्सन,
during the time of the World War. Thank you students. I think this chapter has been clear to you. If you have any doubts, then you can watch again and again this video. I'm going to continue this chapter. There is the end of this story also. Dr. Sadao had been called in the night to perform an emergency operation on the general. ठीक, तभी क्या हुआ, डॉक्टर सदाव को बुलाया गया जनरल की सर्जरी करने के लिए, एकदम इमरजेंसी में उसको बुलाया गया. इट इन्वॉल्व हिज गॉल ब्लैडर, और उसे प्रॉब्लम क्या थी, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम थी. फॉर 12 आवर्स सदाव हैड नॉट बीन श्योर दैट जनरल वुड लाइव, और उस सर्जरी में 12 घंटे तक डॉक्टर सदाव भी कंफर्म नहीं था कि वो बच पाएगा या नहीं बच पाएगा. मीन्स ही वॉज नॉट आउट ऑफ डेंजर. देन ही बिगेन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड टू डिमांड फॉर फूड. उसके बाद उसने गहरी गहरी सांसें लेना शुरू किया, यानी अब वो सांस ले पा रहा था प्रॉपरली, अच्छे से सांस ले पा रहा था. और जब थोड़ा सा रिकवर होने लगा जनरल, तो उसने फूड की डिमांड किया. फूड की डिमांड कोई कब करता है, जब वो बेटर फील करता है, जब उसको सही लगता है, तभी व्यक्ति को भूख लगती है. सो सदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स. अभी तक सदाव जो था वो ये नहीं पूछ पा रहा था जनरल से कि उन्होंने वो किलर क्यों नहीं भेजे. ठीक है. So far as he knew, they had never come. The servants has returned. The room was clean. और उसने जैसे ही मौका देखा, जब लगा कि डॉक्टर वो ओल्ड जनरल जो वो बेटर फील कर रहे हैं, बोल सकते हैं, तब उन्होंने उस क्वेश्चन को पूछा. तो जनरल ने कहा कि सॉरी, मैं अपने दर्द की वजह से मैं अपना प्रॉमिस भूल गया, लेकिन ये बात आप किसी को नहीं बताओगे. उसने उससे प्रॉमिस किया डॉक्टर सदाव से कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे कि मैं अपना प्रॉमिस भूल गया था, या मैंने तुम्हें मतलब उस व्यक्ति को मरवाने के लिए प्रॉमिस किया था, या उसे भेजने के लिए, उसे मारने के लिए तुम्हारे पास मैं किलर्स भेजता. क्योंकि इससे क्या था, लोगों का विश्वास उस पर से उठ जाता कि कितना स्वार्थी है जनरल जो है. और डॉक्टर सदाव ने उसे कहा कि वो तो वहाँ से भाग गया. मतलब उसने ये नहीं बताया कि मैंने उसको बचाया, बल्कि उसने कहा वो वहाँ से भाग गया. जनरल उसे मतलब ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगा डॉक्टर सदाव की, इसलिए क्योंकि उसने एक शत्रु की भी उसने जान बचाई एक डॉक्टर होने के नाते. और जब सर्वेंट्स को ये पता चल गया कि जो एनिमी है वो वहाँ से जा चुका है, तो सारे सर्वेंट्स भी डॉक्टर सदाव के यहाँ वापस आ गए. द रूम वॉज क्लीन. और फिर जिस रूम में वो ठहरा था उसको साफ़ किया गया. ओल्ड गार्डनर और कुक जो थे उन्होंने उसको साफ़ किया, और उसमें सल्फ़र वगैरह जला के उसका शुद्धिकरण किया, क्योंकि उसमें एक एनिमी रुका था, एक जापानीज़ रुका था. 1 week after the operation, Sadao felt that the general was well enough to be spoken to about the prisoner. एक हफ्ते बाद, ऑपरेशन के एक हफ्ते बाद, जब डॉक्टर सदाव को ये लगा कि जनरल जो अब ठीक है, अब वो बोल सकता है, तो उन्होंने उस प्रिजनर के बारे में उसे बताया. सदाव इन्फॉर्म हिम दैट द प्रिजनर हैड एस्केप्ड, और ये भी बताया कि वो वहाँ से जा चुका है. द जनरल आस्क्ड द डॉक्टर वेदर ही हैड नॉट प्रॉमिस्ड टू किल द मैन फॉर द डॉक्टर. जनरल ने डॉक्टर से पूछा कि ही हैड नॉट प्रॉमिस टू किल द मैन, मतलब जनरल ने कहा कि हाँ मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था उस व्यक्ति को मरवाने के लिए, लेकिन मैं भूल गया. ही देन कन्फेस्ड द ट्रूथ, और उसके बाद उसने सच्चाई को भी स्वीकार किया कि ही हैड बीन सफरिंग अ ग्रेट डील, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेन से सफ़र कर रहा था, इसलिए वो अपने प्रॉमिस को भूल गया था. सो ही थॉट ऑफ नथिंग बट हिमसेल्फ, और इसने ये भी, जनरल ने ये भी एक्सेप्ट किया कि मैं सिर्फ अपने ही बारे में सोचता था, मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा. इट मीन्स ही हैज़ बिकम टोटली सेल्फिश. ही हैड फॉरगॉटन हिज प्रॉमिस. दैट नाइट सदाव वेटेड एट डस्क फॉर द लाइट फ्रॉम द आइलैंड. उस रात डॉक्टर सदाव ने मतलब आकर एक हफ्ते बाद जब उसको वहाँ पर भेज दिया था, और फिर जब जनरल को उसने सारी बातें बता दी, तो आने के बाद उसने वेट किया कि उस व्यक्ति की फ्लैश लाइट का, सिंगल फ्लैश लाइट का सिग्नल का, मीन्स ही वॉज डूइंग वेटिंग, बट देर वॉज नो वन, मीन्स देर वॉज नो सिग्नल, एंड इट हैज़ बीन कन्फर्म दैट द मैन हैज़ बीन एस्केप्ड फ्रॉम दैट आइलैंड. हिज प्रिजनर हैड गोन अवे एंड वॉज सेफ.
Sadao wondered why he could not kill the young man, though white people were repulsive. Until now, Sadao was very wondered. He was surprised why he was not able to kill that enemy who was an American. उसे अपने आप पर बहुत आश्चर्य था कि आखिर वो उस अमेरिकन को क्यों नहीं मार पाया. तो रीज़न ह्यूमनिज्म, काइंडनेस. ओके, सो इस चैप्टर में हमने जाना कि किस तरीके से मानवता जो है या दयालुता जो है, काइंडनेस जो है, वो किसी व्यक्ति को कितना महान बना देती है. वो उसको एक देशभक्त से भी ऊपर पहुंचा देती है. और यहाँ पर डॉक्टर सदाओ की पैट्रियोटिक फीलिंग्स कहाँ शो होती हैं, जब वो सारी सच्चाई जो है जनरल को बता देता है. दैट शोज हिज पैट्रियोटिक फीलिंग एंड ह्यूमनिज्म एज ही सेव द life of an American and enemy. Okay, thank you students. I think this chapter has been clear to you. Thank you and goodbye. Take care of you.